Good afternoon, students, and welcome to Adarsh City Convent School, Kakor. Class 10th. Name of the book: Footprints Without Feet. And open your book at the page number 20. Your 3 chapters are complete before, and writing or reading work in 3 chapters is complete. Today I will teach you chapter number 4, a question of trust. विश्वास का एक प्रश्न. From starting, it is said that you must set a thief to catch a thief, but it is also said that there is honor among thieves. Which saying does this story illustrate? ये कहा जाता है कि एक ही चोर दूसरे चोर का पता लगा सकता है, पर यह भी कहा जाता है कि चोरों के बीच आपस में ईमान और सम्मान होता है. यह कहावत ही व्याख्या करती है. यानी अब इस देखें, इस चैप्टर में ऐसे दिया है, चोरों में मान सम्मान भी होता है और एक चोर दूसरे चोर का पता लगा सकता है. Everyone thought that Horace Denby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried. प्रत्येक यही बात सोचता था कि होरेस डेनबी एक अच्छा ईमानदार नागरिक था. वह करीब 50 साल का था और अविवाहित था. एंड he lived with a housekeeper who worried over his health. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. और वह अपनी एक नौकरानी के साथ रहा करता था जो उसकी सेहत के बारे में बहुत चिंतित थी. वास्तव में प्राय वह बिल्कुल ठीक ठाक और खुश रहता, पर ग्रीष्म में उसे एलर्जी से ज्वर हो जाया करता था. He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. Yes, Horace Denby was good and respectable, but not completely honest. वह ताले बनाया करता था और अपने धंधे में इतना सफल हुआ कि उसके 2 सहायक भी थे. हाँ, होरेस अच्छा और सम्मानित व्यक्ति था और पूरी तरह ईमानदार नहीं था. यानी ईमानदार पूरी तरह नहीं था. 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. He loved rare, expensive books. 15 साल पहले होरेस ने अपनी पहली और एकमात्र कैद की सज़ा जेल के पुस्तकालय में काटी थी. लाइब्रेरी पुस्तकालय. होरेस दुर्लभ और महंगी पुस्तकों को पसंद किया करता था. So he robbed a safe every year. Each year he planned carefully just what he would do. इसलिए हर साल वह एक तिजोरी से धन चुराया करता था और हर साल वह सावधानीपूर्वक योजना बनाया करता था कि उसे क्या करना है. Stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent. इतना चुराता कि उसका 12 महीने का काम चल जाता और चोरी छिपे एक एजेंट के माध्यम से अपनी अच्छी पुस्तकें खरीद लाता. Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be successful as all the others. जुलाई की चमकती हुई धूप में चलते हुए
उसे विश्वास हुआ कि इस साल की चोरी भी अन्य चोरियों की तरह सफल रहेगी। For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange। 2 सप्ताह से वह शॉटओवर ग्रेंज स्थित एक घर का अध्ययन कर रहा था। Looking at his room, its electric wiring, its paths and its garden। उसके कमरों को, उसके बिजली के तारों को, उसके रास्तों तथा उसके बगीचे को। This afternoon the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London। उस दोपहर 2 नौकर जो ग्रेंज परिवार के लंदन जाने के बाद देखभाल के लिए घर में रहते थे, had gone to movies, फिल्म देखने चले गए। Horace saw them go and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose। He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back। होरेस ने उन्हें जाते देख लिया और अपनी नाक में एलर्जी की सनसनाहट के बावजूद खुश हुआ। वह बगीचे की दीवार के पीछे बाहर निकला, थैले में अच्छी तरह रखे अपने औजारों को पीठ पर लाद लिया। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe। ग्रेंज तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड के हीरे जवाहरात थे। If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year। यदि वह एक एक करके बेचता तो उसे उम्मीद रहती कि उसे कम से कम 5,000 तो मिल ही जाएंगे, जो अगले साल तक खुश रखने के लिए उसे पर्याप्त होंगे। There were 3 very interesting books coming up for the sale in the autumn। Now he would get the money he wanted to buy them। पतझड़ ऋतु में तीन बहुत रोचक पुस्तकें बाजार में आने वाली थी। अब उसे उनको खरीदने के लिए काफ़ी धन मिल जाएगा। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside। उसने नौकरानी को रसोई के दरवाजे के बाहर हुक पर चाबी लटकाते देख लिया था। He put on a pair of gloves, took the key and opened the door। He was always careful not to leave my fingerprints। उसने दस्ताने पहने, चाबी ली और दरवाज़ा खोला। वह उंगलियों की छाप न छोड़ने के लिए हमेशा सावधान रहता था। A small dog was lying in the kitchen। It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way। एक छोटा कुत्ता रसोई में लेटा हुआ था। वह हिला, कुछ शोर किया और मित्रतापूर्वक पूंछ लाई। All right, Sherry, Horace said as he passed। होरेस वहाँ पास से जब गुजरा तो उसने कहा, ठीक है सैरी। All you had to do keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love। कुत्तों को शांत रखने के लिए उन्हें उनके सही नाम से पुकारना होता है और प्यार दिखाना होता है। The safe was in the drawing room behind a rather poor painting। Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books। तिजोरी ड्राइंग रूम में एक घटिया चित्र के पीछे थी। एक क्षण को होरेस के मन में आया कि वो किताबों के बजाय चित्रों का संग्रह कर ले, चित्रों का इकट्ठा कर ले, पर चित्रों के लिए ज़्यादा जगह चाहिए। But they took up too much room in a small house। Books were better।
और छोटे घर में किताबें रखना ही अच्छा होता है। There was a great bowl of flowers on the table, and Horace felt his nose tickle. He gave a little sneeze and then put down his bag. मेज पर फूलों का बड़ा सा कटोरा था। होरेस की नाक में सनसनी हुई, उसे हल्की छींक आई और फिर अपना थैला रख दिया। उसने सावधानी से औजार लगाए। नौकरों घर लौटने के पहले उसके पास 4 घंटे थे। He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servants returned. यानी कि नौकरों घर लौटने से पहले उसके पास 4 घंटे थे। The safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with locks and safes all his life. तिजोरी खोलना कोई कठिन काम नहीं था। आखिरकार उसने सारा जीवन तालों और तिजोरियों के साथ गुजारा था। The burglar alarm was poorly built. चोरों की सूचना देने वाली घंटी बहुत घटिया थी। He went into the hall to cut its wine. वह इसका तार काटने हॉल में गया। He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. और जब वो वापस लौटा तो फूलों की गंध फिर से आ जाने से उसे जोर से छींक आ गई। How foolish people are when they own valuable things. Horace thought a magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. कितने मूर्ख होते हैं जब उनके पास मूल्यवान चीज़ें होती हैं। होरेस ने सोचा। एक पत्रिका के लेख में इस पर एक हुलिया छपा हुआ था, लेख छपा हुआ जिसमें सभी कमरों का नक्शा और इस कमरे का चित्र था। The writer had been mentioned that the painting hid a safe. लेखक ने यह भी बता दिया कि पेंटिंग के पीछे तिजोरी रखी थी। But Horace found that the flowers were hindering him in his work. He buried his face in his handkerchief. परंतु होरेस ने पाया कि फूल उसके काम में बाधा बन रहे थे। उसने अपना चेहरा रुमाल से ढक लिया। Then he heard a voice say from the doorway, What is it? A cold or hay fever? तभी दरवाजे पर उसे एक आवाज़ आई, ये क्या है, सर्दी या एलर्जी ज्वर, यानी कि एलर्जी से होने वाला बुखार। Before he could think, Horace said, hay fever and found himself sneezing again. इससे पहले कि वो सोच पाता, होरेस ने कहा एलर्जी का बुखार है और पुनः अपने आप को छींकते पाया। The voice went on, You can cure it with a special treatment. You know, if you find out just what plant gives you the disease. आवाज़ फिर आई, तुम इसे एक विशेष उपचार द्वारा ठीक कर सकते हो यदि तुम्हें पता चल जाए कि कौन सा पौधा तुम्हें ये बीमारी देता है। आई थिंक यू वुड बेटर सी ए डॉक्टर इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। मेरे विचार से तुम किसी डॉक्टर से सलाह लो यदि तुम अपने काम के बारे में गंभीर हो। मैंने अभी तुम्हें ऊपर वाली मंजिल सुना था। आज इतना ही, आप घर पर रीडिंग करेंगे
और हम तैयारी करेंगे शेष नेक्स्ट टर्म पर। थैंक यू।